मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणाढ्य। तत्वार सूत्र में कर्म सिद्धांत पर हम विचार कर रहे हैं और कर्म सिद्धांत में भी जो बहुत सुंदर चर्चा आ रही है वो इस बात पर है कि जीव के कर्मों का बंधन कैसे हो, बराबर। और बंधन के कारण में शास्त्रों में 5 कारण बताए हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है ना। कौन कौन से 5 कारण आए? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। क्लियर। और इन 5 कारणों में प्रपोर्शन वाइज देखा जाए सबसे ज्यादा बंधन किससे होता है? वर्तमान में, भूत में, एक में, सब में। बराबर। क्या मैं कह रहा हूं? બધા 5 કારણો આપણા છે। મિથ્યા દર્શન, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય और योग। એ 5 કારણોમાંથી સૌથી વધારે બંધન શેનાથી થાય? ના કેવલ આજે બલ્કि અનંત કાળ સુધી। અને એમ જ ના કેવલ એક જીવનો બલ્कि અનંત જીવનો। જો તમે બંધનનો પર્સન્ટેજ જોવા જશો તો અનાદિકાલથી લઈને અનંત જીવોમાં સૌથી વધારે કર્મનો બંધન માત્ર ને માત્ર મિથ્યા દર્શનની અવકને લીધે થયો છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા। અને ગજબ વાત, સૌથી વહેલા જાય છે કોણ? બોલે સૌથી વહેલા પણ જે નષ્ટ થાય એનું નામ પણ મિથ્યા દર્શન છે। બરાબર। પણ તોય જીવ મિથ્યાત્વના અભાવ માટે ઊંડા ઉપાય કરતા નથી। ઊંધો ઊંધો થઈને ક્યારે કશાય દૂર કરવાનો ઉપાય કરે, ક્યારે આમ ટટાર બેસવાનો અભ્યાસ કરે, ક્યારે એટલે યોગ કરે, ક્યારે આમ દેખાદેખીમાં વ્રત પાલન કરે, ક્યારે આમ વિષયોને છોડી દે। બધા ઉપાયો કરે પણ જે સીધો સરળ ને સાચો ઉપાય છે कि वारंवार तत्वનું ઘોલન કરવું, વારંવાર તત્વમાં બેસવું, વિચાર કરવું, એ જીવ કરતો નથી। એટલા માટે मेन काम जब तक करोगे नहीं आगे का फल कहां से मिलेगा? ख्याल में आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा गंभीरता से सोचते हुए में चलना है कि पहले नंबर पे तत्रादौ सम्यक्त्वम। कहाँ पे पढ़ा है? कुछ पढ़ी हुई गाथा सी लग रही कि नहीं लग रही है? तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयम् अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव सतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। लागे છે વાંચેલી? ખુશીબેન, હેતલબેન, નૈનાબેન, નીનાબેન બોલો। સાંભળેલી? કઈક કઈક લાગે તો છે, કઈક તો ક્યાંક તો આવી છે। ક્યાં આવી છે? સૌથી પહેલા સંયુક્ત કરવું જોઈએ। ક્યાં લખ્યું છે? તમે લોકો ભણી ચૂક્યા છો અને હું તમને ભણાવી ચૂક્યો છું ને તમે એમાં સારામાં સારા માર્ક્સ પણ લઈ આવ્યા છો। બોલો હવે। बत्ती, वितराग विज्ञान 3, मोक्ष का मार्ग, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मुक्ति नो मार्ग। बराबर। सिलेबस में वितराग विज्ञान 3 में छे અને ગ્રંથ છે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય। બરાબર। ભાગ 3 પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં આ ગાથા આપેલ છે। ત્યાં મુક્તિના માર્ગની ચર્ચા કરી છે। ઠીક છે ને? બાલબોધ છે પણ એમાં બાળકોની વાત નથી, સમજ્યા? બાલ બુદ્ધિજીવોની વાત છે। બચ્ચો માટે નથી આ ગ્રંથ, આ બાલ ગોપાલ બધા માટે। ત્યાં સ્પર્શ શબ્દમાં પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય એટલે અમૃતચંદ્રાચાર્યની આજ્ઞા છે શું? कि तत्रादौ सम्यक्तम,
कि સૌથી પહેલા આ જીવને સમ્યક દર્શન પામવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? અને જો આ નથી કરતો તો બાકી ઉપાય તો થવાના જ. કાલે મેં તમને એક લૌકિક એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું હતું ને કે ઘરમાં ઘણા બધા કામ હોય ઘરમાં રહેતા પહેલા, પણ સૌથી પહેલો કામ કયો હોય? પ્લોટ લેવા. પ્લોટ લીધા પછી કન્સ્ટ્રક્શન પછી ફર્નિચર પછી ફિનિશિંગ, કલરિંગ, આ બધું એ પછી થવા વાળી અવસ્થા છે. કલરિંગ ના ચક્કરમાં તમે પ્લોટ ના ભૂલી જાઓ તો તમે પહેલો પાયો નાખશો ક્યાં? ખબર પડી કે નહીં પડી? આ બધા સ્ટેજીસ છે, અમને ખબર છે, અને રહેતા પહેલા બધી થાય છે એ પણ અમને ખબર છે, પણ સૌથી પહેલા કઈ છે? પ્લોટ લેવું. તો સમ્યક દર્શન એટલે શું છે? કેવું મસ્ત પરિભાષા બની. સમ્યક દર્શન એટલે આપણે મોક્ષમાં પ્લોટ લઈ લીધું. દિનેશભાઈ લાગે છે ક્યાં પ્લોટ લઈ લીધું આપણે? બોલો. આમ જેમ કે અમદાવાદમાં કોઈ રહેતો હોય ને અને પોશ એરિયા કોઈ હોય અને એમાં મોટો કેટલા કહીએ 1000 વાર નો પ્લોટ લઈ લે તો કેવો લાગે? આમ તમે સમજો 1000 વાર નો મારું પ્લોટ છે. કઈ જગ્યા ઉપર? અમદાવાદના પોશ એરિયામાં. બરાબર, એની રજીસ્ટ્રી થઈ. રહેવા નહીં ગયા, પણ 1000 વાર નું શું છે? પ્લોટ. ખબર પડી ને? જ્યારે 1000 વાર નો પ્લોટ આપણા નામે આવે તો આપણે કેટલો આનંદ થાય. તો સમ્યક દર્શન એટલે શું? સમ્યક દર્શન એટલે મોક્ષમાં પ્લોટ લઈ લીધું. હવે આજ નહીં તો કાલે, કાલ નહીં તો પરમ દિવસ, 2 4 બહુ 10 50 બહુ પછી પણ આ જો ને પાછળ સિંહ નું એક્ઝામ્પલ છે. આ સિંહની પર્યાયમાં મહાવીરના જીવે સમ્યક દર્શન થયો તો પછી અલ્પ સ્વલ્પ કાલમાં એ પછી ક્યાં પહોંચી ગયા? એ સિદ્ધ દશામાં પોતાના પ્લોટ ઉપર કન્સ્ટ્રક્શન કરી દીધું. સિંહની પર્યાયમાં મેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયો. पुण्य इन्वेस्टमेंट घणु पहले थी चुके तो खबर है कि महावीर भगवान का जीव एक बार नारायण भी बन चुका। नारायण भी बन चुका मतलब पता है? 63 महापुरुष सलाका पुरुष होते हैं ना, 63 सलाका 63 सलाका पुरुषों में 9 नारायण होते। तो त्रिपृष्ठ नाम का पहला नारायण भी कौन हुआ था? यही महावीर स्वामी। मतलब पुण्य का फल तो वो वहां पे भोग चुके थे, तो भी क्या फर्क पड़ा? कितने साल तक संसार सागर में अटकना पड़ा। और आत्मानुभूति जब हुई और आत्मानुभूति पूर्वक जब सिंह की दशा में सम्यक दर्शन हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संसार अब बस सिद्ध बन गया। क्या में इसीलिए सम्यक की महिमा है। सर 63 सलाका पुरुषो सम्यक भी नहीं होता? 63 सलाका पुरुष सम्यकના પ્રતાપથી હોય છે। બધા सम्यकથી હોય એવો નિયમ નથી। ખબર પડી? सम्यकના પ્રતાપ જો બધા सम्यकથી હોય તો બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી, શુભોમ ચક્રવર્તી નરકમાં ના જાય। એટલે પૂર્વે ક્યાંય सम्यक દર્શનના પ્રતાપથી જ એ એવો પુણ્ય બંધાય કે જ્યાં જીવ શ્લાકા પુરુષ એટલે એમાં આવવાનું રિઝર્વેશન કરી છે। बराबर ख्याल में आवे छे? समझा कि नहीं समझा? तो अब खबर पड़ी ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना? तत्वार्थ श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करना। और उस प्रयास के लिए क्या किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा के स्वरूप का विचार करना, यही एक काम होता है। और जिनवाणी में भी लिखा है कि स्वाध्याय करो, आत्मा का स्वरूप का विचार करो, जो वस्तु है जैसी है बस निर्णय करो। बराबर ख्याल में आया? मिनिमम अपने उपयोग को भटकाओ, मिनिमम पापों में लगो, मिनिमम विकल्पों में लगो, मिनिमम करते करते आत्मा में ऐसे जमो रमो कि बाहर का कुछ याद ही ना आवे, तो उस बात की कीमत है, कदर है। ठीक है ना? चलिए अपन अब बंध के कारणों की बात करें तो बंध के कारणों में सबसे पहले नंबर का कारण कौन सा है? जो होलसेल में जिसके कारण से कर्म बनते हैं वो है मिथ्या दर्शन यानी अतत्व श्रद्धान। ठीक है?
क्या है परिभाषा? तत्व मतलब क्या? बाल बोध एक, बीतराग ज्ञान एक। बोलो तत्व किसे कहते हैं? જે વસ્તુનો જે ભાવ હોય એને તત્વ કહે છે. हाँ बराबर, જે વસ્તુનો જે ભાવ છે એ ભાવને તત્વ કહીએ છીએ. બરાબર. હવે આ તત્વ કોને કહીએ દિનેશભાઈ? જે બરાબર, જેમ કે તમારા ભાવ મારા સુધી પહોંચ્યા નહીં કેમ કે તમે અનમ્યુટ નથી. આ તત્વ કોને કહીએ? જે વસ્તુનો જેવો ભાવ એ તત્વ. તો આ તત્વ શું? જે વસ્તુ જેવી નથી એ અતત્વ. બરાબર. 9 + 9 = 18. બરાબર ને? આ સાચો આન્સર. તો ખોટો આન્સર કયો? એના સિવાયના બધા 18 સિવાયનો બીજો બધો બધું એ ખોટું. બધું ખોટું. વિચારજો. તત્વ જેવો છે એવો શ્રદ્ધાન, અતત્વ એ જેવો છે નહીં એવો શ્રદ્ધાન. એટલે હું જે છું નહીં, હું શરીર નથી પણ હું શરીરને મારો છે એમ માનું છું, માટે આ શું થયો? શરીર બાબતમાં આપણું અતત્વ શ્રદ્ધા. બરાબર. હું કોઈનો કરતા નથી પણ હું એમ માનું છું કે બધાનું હું કામ કરું છું. આ જગત માટેનો અતત્વ શ્રદ્ધા. બરાબર. સંસારની કોઈ પણ વસ્તુ સારી કે ખરાબ નથી, જ્ઞાનનો જ્ઞેય માત્ર છે. તો પણ એમાં જે ઇષ્ટ અનિષ્ટ બુદ્ધિ છે એ શું કહેવાય? અતત્વ શ્રદ્ધા. ખ્યાલમાં આવે છે? વિષયોમાં સુખ નથી, આત્મામાં સુખ છે, તો પણ આપણે વિષયોમાં સુખ ભાસે છે એ શું છે? અતત્વ શ્રદ્ધા. ખબર પડી? અને એ જ્ઞાનની વાત નથી કરતા. શેની વાત કરે છે? શ્રદ્ધાન. શ્રદ્ધાન એટલે ઊંડી ઊંડી માન્યતા જે તમારા અમારા અંદરમાં પડેલી છે. आज जो मानसविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत स्टडी की और बहुत स्टडी करने के बाद में उन्होंने मन के कुछ हिस्से किए, जिसे उन्होंने चेतन मन, अचेतन मन ये कहा. सुना होगा ना? कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड. ये बड़ा शानदार है क्योंकि इसके पहले हमें श्रद्धा को समझाना बड़ा मुश्किल. हम श्रद्धा बताएं तो बताएं कैसे? हम श्रद्धा के नाम पर मात्र ऊपरी ज्ञान की बातों को श्रद्धा समझ लें. लेकिन आज मनोवैज्ञानिकों ने काफी ज्यादा स्टडी की और उस बात के आधार पर उन्होंने लिखा कि जो अपना कॉन्शियस माइंड है ये तो बहुत वीक है. जो ये तो एक प्रकार का क्या है? बहुत ऊपरी टिप ऑफ आइसबर्ग. बराबर. एक्चुअल में तो जो मेन जड़ है वो क्या है? अंदर में पड़ा हुआ अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस क्या है? जो आपका श्रद्धान. आप समझ लो, एक सिचुएशन में एक जैसे विचार नहीं आएंगे, आपका गहरा श्रद्धान आपको उस हिसाब से विचार करवा दे. जैसे जिसकी नकारात्मक सोच है, बराबर, वो हर जगह पुलिसिया दृष्टिकोण से ही देखेगा. किसने किया, क्यों किया, क्या नहीं किया. जिसकी पॉजिटिव सोच है वो हर जगह पे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा. बराबर. जो आपकी मान्यता है वो मान्यता से अंदर में खुद ब खुद विचार आने आते कि नहीं आते? लाना पड़ता है? विचार करते. एक शादी में मैं आपको बताऊं, मेरे मामा हैं, उनका टेंट हाउस का बिजनेस है. टेंट हाउस समझते ना, ये सब डेकोरेशन वगैरह. तो जब मेरे मामा की लड़की की शादी हुई तो कह रहे कि मतलब बार बार कह रहे
कि आज तक की शादी का सबसे ऊंचा टेंट लगाया। तो मैं तो मन मन में सोच रहा, मैंने तो इतनी बार शादियां अटेंड की, टेंट की हाइट के बारे में तो कोई विचार ही नहीं किया कि इसकी शादी में टेंट की हाइट 15 फीट की है तो इसका 20 की है तो इसकी 25 की है। लेकिन बार बार ये बात कह रहे हैं सबसे ऊंचा लगा है, सबसे ऊंचा। कि मैंने आज तक कभी दूसरे टेंट की हाइट देखी नहीं। अब देखी नहीं तो ये सबसे ऊंचा था, निर्णय कैसे करो? ऐसा नहीं कि शादियां अटेंड नहीं, खूब शादियां अटेंड करी, लेकिन ये नजर में ही नहीं आता। और उनकी नजर में यही बात है। अब जो कैटर्स वाला होगा उसकी नजर में क्या आएगा कि इसका खाना सबसे बढ़िया था। कपड़े वाला होगा उसकी नजर में क्या आएगा, इसके कपड़े सबसे बढ़िया। ज्वेलर्स होगा उसको क्या नजर आएगा, इसकी ज्वेलरी बहुत बढ़िया है। बराबर। इवेंट मैनेजर होगा वो मैनेजमेंट को देख रहा है। मतलब आप देखो, और घर के दादा दादी पैसे के खर्च देख रहे हैं, कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। सबकी दृष्टि हमारे हिसाब से आ रही है कि उनके श्रद्धान के हिसाब से। एक न्यूज़पेपर 10 लोग पढ़ते और 10 अपने अपने हिसाब से घटनाओं का एनालाइज करते। बोलो कैसे हो रहा है ये सब? ज्ञान के कारण कि पढ़े हुए श्रद्धान के कारण? एक क्लाउड में क्या कहते हैं, 50 प्रकार की एप्लीकेशंस हैं। सब व्यक्ति किसके कारण एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं? अपने कारण कि अपने श्रद्धान के कारण? ऑप्शन तो सबके पास है। मतलब जो जीव का एक्चुअल काम हो रहा है वो पूरा का पूरा काम उसके गहरे श्रद्धान के कारण होता है। आप समझो, आपकी जो जो सजेशंस आते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इन सब में जो जो भी सजेशंस आ रहे हैं, ये सजेशन क्या करते हैं? ये आपके व्यवहार का एनालाइज करते हैं, आपकी सर्चिंग के मोड को समझते हैं और उसके हिसाब से आपके लिए सजेस्ट करते हैं। तो जो आपके सामने सजेशंस के रूप में वीडियोस आ रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ये आपके श्रद्धान को बता। मेरे अगर YouTube का उसको देखें, जब मैं, अभी तो बच्चे भी उसे यूज करते हैं तो कार्टून कार्टून में जाते हैं, नहीं तो जब मैं माँ करता था तो वो कहीं ना कहीं पूरे प्रवचन प्रवचन की लिस्ट होती थी। तो वो उस रुचि को समझ गए और वो आपके उस हिसाब से सजेशन आने लगे। तो श्रद्धा तपेली शासक लेते हो ये भी किसको बता रहा है, आपके हमारे सबके श्रद्धान को बता रहा है। तो हर चीज के तटस्थ न्यूट्रल दृष्टा बनो, हर चीज। मैं तो यहां तक जानता हूं, अगर आप करें, आप न्यूज़पेपर में सबसे पहले कौन सा पेज पढ़ते हो ये भी आपके श्रद्धान को रिफ्लेक्ट करके चला जाए। आप किसी से कहना मत, और मेरे से सामने तो बिल्कुल मत पढ़ना, मैं कुछ नहीं देखूंगा। लेकिन आप खुद ये विचार करना कि ये जो मैंने जैसे, मुझे क्रिकेट का पहले बहुत शौक था, तो हमेशा जैसे ही पेपर आए तो फ्रंट पेज भी नहीं देखता, लास्ट पेज, हम तो सेकंड, लास्ट से सेकंड नंबर के पेज पे वो खुद ब खुद पेपर ऐसे ही खुलता था। हाँ बोले चल। તમે હમણાં પેપરનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો એમાં તો ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર ના આવે તમને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે इंटरेस्ट एक्चुअल में इंटरेस्ट નો બીજ ક્યાં પડ્યો છે? નોલેજમાં કે તમારી પ્રતીતિ? સમજ્યા? ઇન્ટરેસ્ટ પણ તમને एक्चुअल में તમારી પ્રતીતિના વિશે, નોલેજ થી ઇન્ટરેસ્ટ કોઈને નથી આવતો। ઘણી વાર આમ જો કે બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ હોય પણ આનંદ લેવા માટે એ પોતાના જે કહેવાય ને, જે એનો બુદ્ધિનો વિષય છે એ એને આનંદનો વિષય ગેરંટી નથી। મોટા મોટા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, મોટા મોટા ઓફિસર્સ પણ જાણે છે ઘણું બધું, પણ સુખી થવા માટે શું કરે, નાના છોકરાઓ જોડે રમે, ટેબલ ટેનિસ રમે, વોટેવર। એટલે એ એનો નોલેજનો વિષય છે પણ આનંદનો વિષય। આનંદ તો એના શ્રદ્ધાનમાં જેની જોડે એનો અટેચમેન્ટ છે, પરિવાર જોડે અટેચમેન્ટ છે, તો છેવટે એને આનંદ ક્યાં મળશે? પરિવાર સાથે સમય પસાર કરે,
ભોગો જોડે એટેચમેન્ટ છે તો આનંદ ક્યાં મળશે? ભોગ ભોગવી. જ્ઞાન જોડે એટેચમેન્ટ છે તો ક્યાં મળશે? જાણી. એટલે જે વસ્તુ જોડે એનું અટેચમેન્ટ હોય, અટેચમેન્ટ ક્યાં હોય કે શ્રદ્ધાનમાં એ વસ્તુમાં હિત બુદ્ધિ, પ્રિય બુદ્ધિ, અપનત્વ બુદ્ધિ પડેલી હોય એ જ વસ્તુમાં અટેચમેન્ટ હોય. એ જ તો અહીંયા શીખવાડવા માંગે છે કે ભાઈ જગતમાં 50 જગ્યાએ આપણે પોતાપણું કરીએ છીએ. એક વાર પોતામાં પોતાપણું કરી લે ને. બે લોકો જોડે અરે તમે તો આપણા જ કહેવાના, તમે ક્યાં પારકા કહેવા? બધા આખા ગામને પોતાનો કહી લે છે, વાંધો નહીં તું કે ભાઈ ગામને કેવું હોય તો કે, પણ એક વાર પોતામાં પોતાપણું કરી લે ને, વાર્તા જ પૂરી થઈ જાય. એટલા માટે તો સમ્યક દ્રષ્ટિ ફિઝિકલી સંયોગ્ય રૂપમાં જોવા જાઓ તો કેટલું બધું એક્ટિવ હોય છે. રાજા હોય તો 24 કલાક રાજપાટ કરે, બરાબર. નેતા અભિનેતા હોય તો એ કામ કરે, વ્યાપારી હોય તો વ્યાપાર કરે, ગૃહસ્થ હોય તો ગૃહસ્થીના કામ કરે. એ બધામાં છે પણ બધા જોડે અટેચ્ડ નથી. અને અજ્ઞાની ક્યાંય ના હોય તો બધા જોડે ભેળસેળ જ હોય છે, એને કઈ પ્રતીતિમાં હોતું જ નથી. बराबर. तो सबसे भिन्न अपने आप को देखना, जानना, मानना, अनुभव करना, ये ही सम्यक दर्शन यानी सच्ची प्रतीति है. और पर में अपने आप को मान लेना, अपने को पर में मान लेना, ये अतत्व श्रद्धान है. जो जीव जीव तत्व की भूल है ना, एक्चुअल में पहले और दूसरे सेमेस्टर में जो आपने बालबोध तत्व ज्ञान पाठमाला पढ़ी है ना, वो तो अब मैं आपको शास्त्रों में जगह जगह बताऊंगा कि देखो जो आप पढ़ के आए हो ना, वो ये जो है ना बालबोध में पढ़ा, ये यहाँ से निकला, ये तत्व ज्ञान में पढ़ा वो यहाँ से निकला. समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इसीलिए बात को शुरू में पढ़ाया जाता है कि हम भले ही बालक की किताब पढ़ेगी, कोई यहाँ से छोड़ भी देना पढ़ना तो भी उसे मुद्दे की सारी बातें बहुत अच्छे से ख्याल में आ जाए, इसके लिए वो सब चीजें हमने वहां पे पढ़ाई. हमने जो आपका प्रश्न भी था ना तलबे कि पर का अंश स्वा में नहीं मिलाना और स्वा का अंश पर में नहीं मिलाना, ये सबसे ज्यादा जैसे कि ना ब्रह्म वाक्य है. तत्वार्थ श्रद्धान करना मतलब क्या? स्वा का अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश स्वा में नहीं मिलाना. यानी जीव सदा काल जीव रूप ही था, जीव रूप ही है और जीव रूप ही रहेगा. बराबर? खुशीबेन बराबर છે ને? હે નથી બરાબર? જીવ ક્યાંય જતો રહ્યો? ક્યાં કરી? ક્યાં ફરી આવ્યો? હે હા કઈ વાંધો નહીં. पर का अंश स्वा में नहीं मिलाना और स्वा का अंश पर में नहीं मिला. बड़ा गजब सिद्धांत. पर के खाते में जो भी आए, पर के निमित्त से आए वो पर के खाते में, और स्वा के बोध से जो हो वो स्वा के खाते. बराबर ख्याल में है कि नहीं? अभी अभी मैं एक जगह प्रज्ञा बहन जानते हो, अजित भाई है ना, उनके घर पे जाके आया. उनकी धर्म पत्नी कोरोना से गुजर गई ना, तो मिलने गया था उनसे. ये अजित भाई जी नवरंगपुरा के ट्रस्टी. तब मैं वहीं जाके गया और वहां पे मैंने एक बात बोली, देखो भैया जैन धर्म क्या है? जैन धर्म में कोई प्रसंग सुखद नहीं है. लगन हो गया तो आपने बोला मंगल प्रसंग, मरण हो गया तो आपने बोला दुखद प्रसंग. देखो दुखद शब्द मतलब क्या होता है? दुखद मतलब दुख देने वाला, बराबर. सुखद मतलब सुख देने वाला. तो तत्व दृष्टि से बताओ, क्या कोई प्रसंग सुखद यानी सुख देने वाला और क्या कोई प्रसंग दुखद या दुख देने वाला हो सकता है? कोई सुख दे सकता है क्या? कोई सुख ले सकता है क्या? ऐसे कोई तुम्हें दुखी कर सकता है क्या?
कोई तुम्हारा दुख दूर कर सकता है, दा शब्द है ही नहीं। लेना देना तो जो भौतिक वस्तु का होता है, सुख तो अनुभूति है, और अनुभूति कभी ट्रांसफर की जा सकती है। आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, आपका बेटा हो, बराबर, आपने बेटे को पूरी प्रॉपर्टी जो जिंदगी में आपने 30-40 साल में कमाई हो, एक झटके से पूरी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, साइन ही तो करना है। आप नहीं करोगे तो पकड़ के करवा लेगा, जाएगा कहाँ वो तो जाना तो वही है। बेटे बेटी होते ही किसको ये इसीलिए तो कवि ने बोला, जगत में सबसे बड़ा लुटेरा आपका पुत्र है। क्या बोला एक कवि ने, बड़ी अच्छी लाइन बोली, जगत में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? आपका पुत्र है। बोले क्यों? जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले आपकी धर्म पत्नी पर कब्जा कर लेता है। पहले वो पत्नी क्या थी? सिर्फ आपकी थी। अब वो क्या हो गई? अब बेटे की। अब आप कुछ भी उससे बोलोगे, पानी दे दो, अरे मैं बेटे को खाना खिला रही तो पानी पीटी जाके ले नहीं सकते, पहले दौड़ दौड़ के देती समझ आया है? तो पैदा होते ही क्या करे? आपकी पत्नी पर हक जमा ले। पूरे यौवन अवस्था में, मतलब जब आपकी युवावस्था और उसकी बाल्यावस्था, आपके धन पर क्या करे? पूरा का अधिकतर खर्चा उसके माध्यम पे हो, और बुढ़ापे के समय पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर ले। ऐसा कोई लुटेरा आपने दुनिया में देखा जो आपकी धर्म पत्नी पर हक जमा रहा, आपकी कमाई पर हक जमा रहा, आपकी संपत्ति पर हक जमा रहा? है कोई ऐसा लुटेरा? है? ऑफिशियल लुटेरो ने? हाँ, રજિસ્ટર્ડ લૂંટેરો. લાગતે નથી કે આપણે લૂંટીએ છીએ. મુદ્દા આટલું જ છે ને, લાગવાની વાત છે. માનો તો લાગે, નહીં માનો તો નહીં લાગે. આપણે તો એ લૂંટેરો ના આવે તો મન લાગતો નથી. હા, મારા જીવનમાં લૂંટેરો નથી. હે? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હા, વિચાર કરો. તો આ એક કવિની અને ખરેખર અમુક અંશે બરાબર જ છે. તો જે તમે તમારા છોકરાએ આખી પ્રોપર્ટી એક ઝાટકે આપી શકો છો 30-40 વર્ષમાં જે તમને ભેગી કરી હોય, પણ તમે જે 30-40 વર્ષનો જે તમારો વ્યાપારનો અનુભવ છે, શું એ પણ બ્લૂટૂથ થી કે એક સિગ્નેચર થી એમાં શેર કરી શકો છો? જેવી રીતે એક સિગ્નેચર થી કાલ સુધી તમારી પ્રોપર્ટી હતી એ બધું કોની થઈ ગઈ? એની થઈ ગઈ. એવી જ રીતે કોઈ એવો સિગ્નેચર, એવો એગ્રીમેન્ટ, એવી એપ્લિકેશન કે તમારાનો આજનો અનુભવ એમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. બોલો, છે કઈ? હે? દિનેશભાઈ કે મેં 70 years નો 65-70 years નો જીવન જોઈ લીધું છે, હવે થોડા ઘણો પંડિતજીને આપીને જાઉં અનુભવ પોતાનો, તો એમના વ્યાખ્યાનમાં કામ લાગશે. હે? બોલો, અનુભવ શેર થાય છે ક્યારે? અને એ હું છું, જ્યાં હું છું એ હું નથી. જે હું વેદન કરું છું એ હું છું, પણ જે હું વેદન કરું છું એને હું પણ સ્વીકારતો નથી. અને જે હું છું નહીં, જેનો માત્ર જ્ઞાતા છું, એમાં પોતાપણું કરું છું. એ જ આપણું શું છે? અતત્વ શ્રદ્ધાન છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? સમજ્યા? હા, હે? ઠીક છે ને? તો એ વસ્તુ અહીં કીધી કે ભાઈ અતત્વ શ્રદ્ધાન એટલે જે વસ્તુ જેવી છે નહીં એવો સ્વરૂપ સમજીને, બરાબર, એમાં રાગાદી કરવું, એનો નામ અતત્વ શ્રદ્ધા. और जैसा है वैसा समझ लेना, उसका नाम तत्व श्रद्धा. आया कहाँ न गया कहाँ, बस जो था वही का वही, वैसे का वैसा, उसका नाम तत्व श्रद्धा. ठीक है? देखो आगे अपन बढ़ो. तो अब उस अतत्व श्रद्धा मतलब की कुछ बातें बोली ना मैंने, मैं कभी भी जब मिथ्यात्व को बताता हूं तो 4 बातें जरूर बोलता हूँ. आपको फिर से बोल देता हूँ. कौन कौन सी 4 बात? इनको आप बहुत शांति से समझना, बराबर. जो व्याख्यान में सुन चुके हैं रेगुलर, उनको एक आध याद होगी,
खुशी बहन है यार, 4 बातें कौन कौन सी बोलता हूँ। देखो ये हमेशा के लिए गांठ बांध के रख, बताता हूँ। हाँ बोलो, एक आधी याद आई। देह में आत्मबुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, और संयोग में इष्टनिष्ठ बुद्धि। नितिन भाई बहुत सुंदर बात है, मीना भाभी याद रख। सबसे पहले नंबर का तत्व श्रद्धान कौन सा है? देह में आत्मबुद्धि, मतलब देह छे એવું આવું કોણ કહે છે? પણ ભાઈ अभिषेक, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारा नाम तो आत्मा था, बदल के क्या रखेंगे? अरे आत्मा आत्मा छोड़ो ना, मेरी बात कर रहा। अरे तू એટલે આત્મા જ છે। આ આત્માએ ઘણું સરસ કામ કર્યું। કોઈ આ આત્મા તરફ ઈશારો કરીને કે ના તો આમ રાજી થાય, પણ આંખ બંધ કરીને કોઈ વ્યાખ્યા આ આત્મા બહુ સરસ પ્રવચન કરે છે તો મજા નહીં આવે, પણ ફોટો મૂકે ને આમ ઈશારો કરે ને તાલી, તો આ આત્માને આનંદ થાય। હવે શું કહે છે? આ આત્મા, હવે આત્મા તો અમૂર્તિક છે, ઈશારો જેની તરફ થાય છે કોણ છે? હે? પણ આપણે આનંદ શેમાં? આત્મા કોક આત્મા બહુ સારું કામ કરે છે, આ સાંભળવામાં આનંદ આવે કે ભાઈ કોક આત્મા બહુ સરસ વ્યાખ્યાન કરે, કોક આત્મા બહુ સરસ જાણે, કોક આત્મા બહુ સરસ મહેનત કરે, કોક આત્મા આવું, આમાં આનંદ આવે કે આ આત્મા એટલે હા મારી વાત। શરીર કોની તરફ હાઇલાઇટ કરે? એ કહેવાય દેહમાં આત્મા। આપણે તો એવા મૂળ છીએ ને કે ભગવાન આત્માનું વખાણ કરે, અને આપણે ભગવાનની સામે જઈને પણ શરીરનો વખાણ કરવામાં પાછળ રહેતા નથી। બોલો, મંદિરમાં જઈને પણ છે ચર્ચા ચાલે તો મારે તો આમ ચાલે છે, મારો તો હું તો યોગા કરું, હું તો શું કહેવાય આમ ચાલવા જાઉં, હું તો આ ખાઉં ને પેલું ખાઉં। પૂજા કરે, અને પૂજા કર્યા પછી અમારા મંદિરમાં ઘણી વખત આમ થાય, પૂજા કરીને બહેનો નીકળે અને 5 મિનિટ બાંકડા ઉપર બેઠે, તો બાંકડા ઉપર તમે જો વાત સાંભળો ને તો તમે આ ખાવું ચાલુ કરો ને આવું કરો ને અમને આનાથી સારું રહે, અમને તેનાથી સારું રહે, આ જ બધી વસ્તુ છે। હોય છે કે નથી હોતું? એટલે કેમ? એટલે કઈ બુદ્ધિ આવી? આ કઈ બુદ્ધિ? દેહમાં, પછી વિષયોમાં સુખ બુદ્ધિ। બરાબર? કેમ છો? મજામાં? ये मजा सेमा कब मजा है भाई? कैसा मजा है? अरे क्या पंडित जी, मजा ही मजा है। अभी दुबई घूम कर आया, अभी लंदन जाना है, बीच में गोवा का ट्रिप है, बराबर। कल ही चाइनीज खाया था, आज पंजाबी खाऊंगा, परसों मैक्सिकन खाऊंगा। मजे मजा है। कल ये पिक्चर देखी थी, आज ये देखूंगा, मजे मजा है। कल ये किया था, आज ये करूंगा, मजे मजा है। इन सब के कारण मजा है, और इन सब का कारणभूत धन रोज कमाता हूँ, मजे ही मजा है। और इन सब से मैं मजे में हूँ। भाई तुम मजे में हो तो सिद्ध भगवान किस में? मैं तो एक प्रश्न करता हूँ, अगर तुम या हम सब मजे में हैं तो सिद्ध भगवान तो दुख में होंगे ना? विचारो, गलत कह रहा हूं क्या? अगर सब मजे में हैं तो सिद्ध भगवान दुख में होंगे, क्योंकि जिन चीजों से हम मजे में हैं सिद्ध भगवान के पास तो वो चीजें है ही नहीं, और है नहीं तो वो क्या होंगे? दुखी होंगे। और अगर वो सुखी हैं तो वो कोई भौतिक चीज के बिना सुखी हैं, मतलब इस देह के कारण मैं मजे में हूं ऐसा नहीं है। लेकिन तो भी अंदर का मिथ्या तो क्या पड़ा हुआ होता है? देह में आत्मबुद्धि और विषयों में सुख। क्लियर? तीसरे नंबर की बात कौन सी बात? बोलो कुछ भी, अनम्यूट करके बोलो। पर में कर्तृत्व बुद्धि। पर में कर्तृत्व बुद्धि। पर में सबसे ज्यादा कर्तृत्व बुद्धि किसमें होती है? शरीर।
किसमें होती है? शरीर में। मैंने क्या किया? शरीर को अच्छा किया, शरीर को मेंटेन किया, शरीर को सुंदर बनाया है। बोलो, 60-65 साल का कोई व्यक्ति हो और कोई रोग ना हो तो छलो छल अभिमान से भरा रहता है। भरा रहता है कि नहीं भरा रहता? मतलब आप उसके पास बैठोगे ना तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड खोल के बैठ जाएगा। 5 किलोमीटर चलता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, देखो डॉक्टर के पास अभी तक नहीं जाना पड़ा, ये नहीं करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ा। ये सब किसके कारण हो रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा कर। ये सब करने वाले भी बीमार, दुखी, रोगी होते हैं, ये उसे ख्याल में नहीं आता। इसीलिए शरीर में कर्तृत्व बुद्धि मत रखो और लॉजिक से विचारो। तुम्हारे शरीर की मुख्य मुख्य चीजें क्या कभी हुई क्या तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्तृत्व के अनुसार हुआ, तुमने कुंडली मूर्त देख के जन्म लिया था। तुम्हारा मरण कुंडली मूर्त देखकर होगा क्या? तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? चलो, जीवन में मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच की रहेगी कि 5 फीट 10 इंच की रहेगी, ये मेरे हिसाब से नक्की हुआ था क्या? मेरा वजन 100 किलो होगा कि 60 किलो होगा, ये मेरे बाल कब सफेद होंगे, मेरी दाढ़ी मूछें कब आएंगी, ये कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे विचार से चले? अब बताओ, है कोई चीज? अगर हो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक में तो कई बार होता है, पूरे शरीर का रंग बढ़िया हो और यहाँ पर एक एक काला दाग या सफेद दाग हो जाता है, वो कहता नहीं सर हम तुम्हें नहीं माने, हम अपने हिसाब से चले। कई बार मजाक में कहता हूँ ना, उम्र बढ़ने के साथ जेंट्स में क्या समस्या होती है, यहाँ के बाल बढ़ जाते हैं, यहाँ के घट जाते हैं। कितनी सी दूरी है इन बालों और इन बालों के बीच में, थोड़ा एडजस्टमेंट करवा देते ना इतने पर, यहाँ के बाल यहाँ उगवा देते, झंझट खत्म। यहाँ पे बिल बिगनी लगवाना पड़ता और यहाँ पे शेविंग करानी पड़ती, जरा सी सेटिंग तो है। बोलो, विचार करके देखो, समझे कि नहीं समझे? कान में से बाल निकलने लगते हैं हर जगह से, मतलब जहां होने चाहिए वहां रहते नहीं है और जहां नहीं होने चाहिए वहां पे पूरा ऊपर। कर लो ना कुछ सेटिंग, क्या कर सकते हैं? बोलो, देह में कर्तृत्व चलता नहीं तो भी कर्तृत्व के मान से हम छलो छल भरे। अब बताओ, चौथे नंबर की भूल कौन सी थी? संसार विषयों में में। बहुत अच्छा। इष्ट अनिष्ट कौन है? कौन अच्छा है कौन बुरा? कौन शगुन कौन अपशगुन? कोई है क्या? जगत में ज्ञान का ज्ञेय नाम का तत्व सब कोई है और इष्ट अनिष्ट नाम का कोई नहीं। क्या बोला? ज्ञान का ज्ञेय सारा जगत, लेकिन अच्छा या बुरा परमाणु की। और हमारे अंदर में ये भूल पड़, ये कह रहा था अतत्व श्रद्धा। तो देह में आत्मबुद्धि, आत्मा में आत्मबुद्धि ये तत्व श्रद्धा है, और देह में आत्मबुद्धि अतत्व श्रद्धा। क्लियर? लिख लो जिन्ना नहीं लिख, टाइम कम है इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, याद से लिख लें। देह में आत्मबुद्धि अतत्व श्रद्धान और आत्मा में आत्मबुद्धि तत्व श्रद्धा बराबर। विषयों में दुख बुद्धि तत्व श्रद्धान और आत्मा में सुख बुद्धि ये तत्व श्रद्धान। और रिवर्स में करो तो विषयों में सुख बुद्धि अतत्व श्रद्धान और आत्मा में सुख